Assalamualaikum dear students. Today our lesson is How a Client Was Saved, written by Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi you know about. We generally know him by the name of Bapuji, Gandhiji, Mahatma Gandhi, etc. He was a great leader acknowledged everywhere in the world who led the Indian national movement and used non-violent methods, and ultimately was successful in securing independence for India from British in 1947. तो ये जो हमारी लेसन है हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड, गांधी जी ने लिखी है। मैं आज इसकी समरी आपको पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि लेसन लंबी है। ये खुद भी आप देखिए, आप पेज 48 लेसन नंबर 7 इसकी समरी पढ़ाऊंगी, आज आपको समझाऊंगी। Gandhi describes an incident that related to one of his friends and co-workers named Rustam ji. He was a large importer of goods from Bombay and Kolkata, Bombay now Mumbai. Many a time he indulged in smuggling also, but he never talked of this to Gandhiji. The customs officials never suspected him because he was on the best terms with them. But one day his guilt was found out. Now he was in big trouble. He was sure to be sent to jail. Rustamji came running to Gandhiji with tears in his eyes. He confessed that he had been smuggling but wanted Gandhiji to save him from being sent to jail. Gandhiji told Rustamji he would have to make a confession of his guilt to the government. He was not in favor of taking the case to court. He said, "It rests with the customs officer to prosecute you or to let you go, and he in turn will have to be guided by the Attorney General. I am prepared to meet both. I propose that you should offer to pay the penalty they fix. But if they don't, you must be prepared to go to jail. The deed of shame has already been done. Imprisonment you should regard as a penance. The real penance lies in resolving never to smuggle again." Rustamji took all this quite well. He was a brave man. He left himself entirely in Gandhiji's hands. Now Gandhiji met the customs officer and explained to him the whole affair. He also promised to place all the books before him and told him how penitent Rustamji was feeling. The customs officers agreed not to take the case to court. Gandhiji was able to convince the Attorney General also, and at last the case was settled by compromise. Rustamji was asked to pay a penalty equal to twice the amount he had confessed to having smuggled. Rustamji wrote down the facts of the whole case, got the paper framed and hung it up in his office to serve as a constant reminder to his heirs and fellow merchants. प्यारे बच्चों, ये थी इसकी समरी। आपको मैं इसका उर्दू में भी तर्जमा बताऊंगी। गांधी जी एक वाक़ा बयान करते हैं इस लेसन में, हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड। जो उनके दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम क्या होता है, रुस्तम जी,
उसी से ताल्लुक़ रखता है। जो उनके साथ काम किया करता था वो बम्बई में रहता था और कलकत्ता में बने माल का एक बड़ा ये दरामदकार था। कई बार वो तस्करी का काम भी करता था, लेकिन उसने गांधी जी से इस बारे में कभी बात नहीं की थी। इसका दोस्त ही था। कस्टम अफसरों ने कभी उस पर शक नहीं किया था, क्योंकि उसके ताल्लुकात किन से थे? गांधी जी के साथ। लेकिन एक दिन उसका गुनाह जाहिर हो गया। अब वो एक बड़ी मुसीबत में था। ये पक्का था कि उसे जेल भेज दिया जाना था। रुस्तम जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए गांधी जी के पास आए, क्योंकि दोस्त थे उसके। उसने ये मान लिया कि वो तस्करी करता रहा था, लेकिन वो गांधी जी से चाहता था कि उसे जेल जाने से बचा ले। उसने गलत काम किया था, लेकिन गांधी जी से अब वही चाहता था कि वो मुझे जेल ना भेजें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। गांधी जी ने रुस्तम जी से कहा कि उसको अपना जुर्म हुकूमत के सामने कबूल करना होगा। उसको कहना था रुस्तम जी से, गांधी जी ने रुस्तम जी से कहा कि आप इकबाल जुर्म कीजिए, गवर्नमेंट से कहिए कि हाँ मैंने जुर्म किया है। इस मामले को कचहरी में ले जाने के हक में थे। उन्होंने कहा कि ये बात कस्टम ऑफिसर पर दारोमदार रखती है कि वो तुम पर मुकदमा चलाए या ना चलाए। उसे यह भी अटॉर्नी जनरल के हुक्म के मुताबिक चलना होगा। मैं उन दोनों से मिलने के लिए तैयार हूँ। कौन कहता है? रुस्तम जी। मेरा ये मशवरा है कि तुम उस जुर्माने को चुका दो, वो जो तुम्हारे लिए तय कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा न करेंगे तो तुम्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। ये गांधी जी किसे कह रहे हैं? रुस्तम जी को। अब रुस्तम जी को क्या करना है? वो शर्मनाक काम तो पहले ही किया था उसने। कैद को तुम एक पछतावा समझना। सच्चा पछतावा तो ये होगा कि तुम फिर कभी तस्करी न करने का पक्का इरादा कर लो। बोला जेल जाने के लिए आप शर्माते हो, लेकिन आपको पक्का ये वादा करना है कि आइंदा मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा। रुस्तम जी ने इन सब बातों को सही मानों में ले लिया और वो एक बहादुर इंसान था। कौन? रुस्तम जी। उसने पूरी तरह से अपने आप को गांधी जी के हाथों में दे दिया। अब गांधी जी कस्टम ऑफिसर से मिले और उसे पूरा मामला समझाया। उन्होंने उसके सामने सारा हिसाब किताब रखने का वादा भी किया और उसे ये भी बताया कि रुस्तम जी अपने किए पर कितना पछता रहा होगा। कस्टम ऑफिसर इस मामले को कचहरी में न ले जाने पर राजी हो गया। कौन? कस्टम ऑफिसर। गांधी जी अटॉर्नी जनरल को मनाने में कामयाब हो गए और आखिर में मामले का निपटार आपसी समझौते से हो गया। आपस में ही समझौता करके हो गया, मामला निपटने लगा। रुस्तम जी से कहा गया कि वो इस कीमत से दुगना के बराबर जुर्माने का भुगतान लेकर जितनी कीमत की तस्करी उसने कबूल की थी। रुस्तम जी ने पूरे मामले की सच्चाई को एक कागज़ पर लिखा और उस कागज़ को फ्रेम में जुड़वा लिया। ये फ्रेम उसने अपने दफ्तर में लटका दिया ताकि उसके आने वाली नस्ल और उसके साथी ताजों के लिए हमेशा रहने वाली यादगार बना रहे। तो ये थी हमारी ये कहानी, इसकी ये समरी थी। आप ये खुद पढ़िएंगे। 48 पेज और लेसन नंबर 7 हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड। हमने जो प्रोज था वो ख़त्म कर दिया। इसमें अब ये लेसन थी, ये था क्या? द पैसेज एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पे हमें किसकी तरह ये बताती है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी इन आवर लाइव्स। ऑनेस्टी इज नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी but the best virtue and the most valued principle. Honesty is the best policy. Client क्या होता है? Person who gets help or advice from a lawyer. Lawyer कौन होता है? वकील। Quack. Person who pretends to have knowledge especially of medicines which he does not possess. Scrap. Difficult situation and trouble. Studiously. Deliberately, with great care, resort, make use of, smuggle, get goods secretly into, smuggling जिसे बोलते हैं, customers,
taxes due to the government on goods imported into country. Duty, payment demanded by the government on certain goods exported or imported. Invoice, list of goods sold with the prices charged. Telling, adjective, very effective, impressive. Quicksilver, mercury. Posted in great haste.